Welcome to Maths Hub, my dear students. In this lecture series, we are taking the questions of indeterminate form based on 0 by 0 and infinity by infinity. Right? So, in my previous lecture, we are done with these first two questions. Now we start with this remaining three questions. See, I am taking the questions where the probability of mistake is more. Right? वो जो silly mistakes आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करते हो, you have to try to overcome that mistake. So please अच्छे से क्वेश्चन को समझिए कहाँ मिस्टेक होती है, and that way I am very sure you are able to solve the question of all the type based on 0 by 0 and infinite by infinite. Let's see the question now. See, here I am writing the question. Limit x tends to 0, x e raised to x minus log 1 plus x upon में x raised to 2. Right? सबसे पहले क्या करना है? I have written here the working rule. Find the true value which you get 0 by 0 or infinity by infinity. तो सबसे पहला काम है true value determine करना. It may be 0 by 0 or infinity by infinity. Why not the other form? Because we are taking specifically the questions of this two indeterminate form. तो मुझे जो इसका true value मिलेगा या तो वो 0 by 0 होगा या infinity by infinity. Right? यहाँ पर हम value substitute करेंगे. Value मतलब हम limit put करेंगे. यहाँ मुझे मिलेगा this is 0, multiply anything is 0. Here you get log 1 plus x, that is log 1, and here 0. So to simplify this you get 0 by 0. क्यों? क्योंकि जो log 1 की वैल्यू होती है वो होती है 0. तो यहाँ मुझे क्या मिला? इसका indeterminate form 0 by 0. This is the working rule. जिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो उसके लिए राइट हैंड साइड में you have to write the indeterminate form what you getting. Once you get indeterminate form, you have to apply L'Hospital rule. You have to mention that you applying this rule. Okay. L'Hospital rule says what? Differentiate numerator and differentiate denominator separately. मतलब you have no need to apply u by v. Separately you have to differentiate numerator. Separately you have to differentiate denominator. Right? जब हम न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ देखो ये एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन होगा, दिस इज द अनदर जिसका डिफरेंशिएशन होगा. जब तुम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो यहाँ पे फंक्शन दो फंक्शंस है जो x के है, इसलिए यूवी रूल अप्लाई होगा. राइट? तो यहाँ मैंने यूवी रूल अप्लाई किया. यू गेट हियर x एज इट इज. डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to x इज e raised to x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, e raised to x रिमेन्स एज इट इज. ये फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया. देन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म यू गेटिंग हियर लॉग का होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स. फिर होगा वेरिएबल का, तो 1 का 0 और x का कितना 1. हियर इन डिनोमिनेटर दिस कम्स टू बी 2x. ओके. वंस यू अप्लाई L'Hospital रूल यू हैव टू अगेन पुट द लिमिट. अब मैं फिर से लिमिट अप्लाई करती हूँ. जब मैंने यहाँ पर लिमिट अप्लाई किया तो मुझे क्या मिलता है? फ्रॉम द फर्स्ट टर्म दिस इज 0 because x 0 multiply anything is 0. From the second term this is e raised to 0, that is 1, and from the third term this is 1 and here 0. Since e raised to 0 1 होता है तो मुझे ये मिला 1 minus 1 by 0, that is 0 by 0. Again you get the indeterminate form 0 by 0. right? तो तुम्हें क्या करना है? फिर से L'Hospital रूल अप्लाई करना है. देखो क्वेश्चन में नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीपल टाइम्स L'Hospital रूल अप्लाई करना पड़ता है. जब तक कि तुम्हें इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है टिल देन यू हैव टू अप्लाई L'Hospital रूल. नाउ अगेन अप्लाई L'Hospital रूल. नाउ वी हैव 3 टर्म 1 2 3. राइट? तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मुझे मिलेगा x एज इट इज e raised to x का e raised to x प्लस x का 1 e raised to x. नाउ इसका डिफरेंशिएशन e raised to x. नाउ इसका 1 बाय समथिंग का डिफरेंशिएशन होता है विद द माइनस साइन 1 बाय दैट टर्म का होल स्क्वायर. तो यहां पर मुझे मिलेगा विद द माइनस साइन दैट टर्म का होल स्क्वायर, दैट इज दिस. ओके. देन होगा वेरिएबल का, तो 1 का 0 और x का 1. हियर इन डिनोमिनेटर दिस कम्स टू 2. राइट? सिंप्लीफाई सिर्फ इतना ही सिंप्लीफिकेशन है. दिस माइनस माइनस बिकम प्लस. सो हम डायरेक्ट फिर से लिमिट अप्लाई करेंगे. दिस टर्म बिकम 0, e raised to 0 that is 1, e raised to 0
here I'm getting minus minus plus, and this is 1 plus 1, 2, sorry, 1 plus 0, that is 1, 1 ka square is 1, so from here you get 1, and from here this is 2. E raised to 0 1 hota hai, since e raised to 0 is 1, so you get here 1 plus 1 plus 1 by 2, that is 3 by 2, and this is the answer. I hope you understand how to solve this question. We are come on the next question, which is fourth question. Quite simple, but still we will solve it. The question is here, limit x tends to 0, square root of 1 plus x minus square root of 1 minus x divide by x. इसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू फाइंड करेंगे. दैट इज सिंपली पुट x टेंड्स टू 0 हियर. सो फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग 1 minus 1 by 0, that is 0 by 0. इंडिटरमिनेंट फॉर्म 0 by 0 मिल रहा है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल वी विल अप्लाई, राइट. सो हियर लिमिट x टेंड्स टू 0. Now you have to differentiate this complete numerator. Simply you have to differentiate numerator and differentiate denominator. Got it? So here you are getting limit x tends to 0. Square root का differentiation होता है 1 by 2 of that term, right? x का होगा 1. With the minus sign, 1 by square root of 1 minus x, and this minus sign का होगा 1 का 0 minus x का -1, and here this is 1, right? जो मिस्टेक यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन हियर, इज ओनली यू आर फॉरगेटिंग टू डिफरेंशिएट दिस x विथ माइनस साइन, और यहाँ पे तुम्हें -1 नहीं मिलता है. सो अगेन टू पुट लिमिट, और फर्स्ट वी सिंप्लीफाइड इट. दिस इज x टेंड्स टू 0, 1 by 2 square root of x plus 1, and this become plus 1 by square root of 1 minus x by 1. On put the limit, you get from here 1 by 2, from here 1 by 2 from here, and again from here 1 by 2. So the answer is simple है, लेकिन यहाँ पर students mistake करते ही है, इसलिए you have to keep in mind. Now we'll come on the next question. This is the next question, last question of this lecture series I am taking. Question number 5, limit x tends to 0, 1 plus x raised to 1 by x minus e by x. See, here you have to use a standard result. How this result will come, will let you know after, but right now we are using the standard one. Limit x tends to 0, 1 plus x whole raised to 1 by x is e. Okay, तो यहाँ जब मैं limit substitute करती हूँ to get the true value, मुझे क्या मिलता है, in place of this e minus e by 0, that is 0 by 0. ओके, तो यहाँ मुझे मिल रहा है 0 by 0. जब भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म 0 by 0 मिलता है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल. हियर यू गेट लिमिट x टेंड्स टू 0, डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर विच इज दिस टर्म minus e, and differentiation of denominator. Now limit x tends to 0. See, अब जब तुम इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो, आई एम टेकिंग इट सेपरेटली डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाय एक्स. पावर पे भी x का फंक्शन है, यहाँ पर भी x का फंक्शन है. डिफरेंशिएशन इज नॉट इजी, सो हम इस फंक्शन को रीराइट करेंगे. हाउ टू रीराइट, इफ आई एम गोइंग टू राइट समथिंग e रेज टू लॉग x, राइट, तो इसका अल्टीमेट मीनिंग क्या होता है, x. सिमिलर हम यहाँ पर ये मेथड यूज करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू राइट दिस एज e रेज टू लॉग 1 प्लस एक्स होल रेज टू 1 बाय एक्स, राइट. नाउ वी हैव अ प्रॉपर्टी. व्हाट इज द प्रॉपर्टी, लॉग एक्स रेज टू 2 कैन रिटर्न एज 2 लॉग एक्स. मतलब अगर लॉग में एक्स रेज टू समथिंग है, तो हम उसको यहाँ मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं. सो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, दिस यू कैन राइट e रेज टू 1 बाय एक्स लॉग 1 प्लस एक्स. इज इट क्लियर. ये हमने यहाँ पे ये स्टेप एक्स्ट्रा लिया है. क्यों, क्योंकि फॉर डिफरेंशिएशन वी कैन नॉट डिफरेंशिएट दिस डायरेक्टली. सो आई एम गोइंग टू राइट in the terms of e raised to log 1 plus x whole raised to 1 by x, and by using the property of logarithm, this can written as e raised to 1 by x log 1 plus x. So when we are differentiating this term, we need to write
this term as this, that is limit x tends to 0 d by dx of, here I'm going to write e raised to 1 by x log 1 plus x minus e, and here the same d by dx of x. ओके, अब देखो जब डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो वही रूल अप्लाई करना है जो अभी तक करते आ रहे हो. e रेज टू x का डिफरेंशिएशन होता है e रेज टू x. तो इस फर्स्ट टर्म में पहले डिफरेंशिएशन होगा e रेज टू x का, फिर वेरिएबल का. तो e रेज टू x का डिफरेंशिएशन विल बी सेम. अब होगा इस पूरे वेरिएबल का, तो यहाँ पर लगेगा यूवी रूल लगेगा. यहाँ पहले करेंगे हम 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर एंड दिस log 1 plus x as it is. This comes under this multiplication. Then with the plus sign 1 by x as it is. Okay. log 1 plus x का differentiation होगा 1 by 1 plus x and x का 1. Right. Now second term का differentiation constant है, इसके लिए 0 और इसका हो जाएगा clear. अब फिर से हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं. यहाँ लिमिट अप्लाई करने में वी हैव टू फंक्शन. दिस इज 1 मल्टीप्लाई, दिस इज सेकेंड फंक्शन. गॉट इट. तो यहाँ पर हम फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. द प्रॉपर्टी इज लिमिट x टेंड्स टू 0 fx मल्टीप्लाई gx कैन रिटर्न एज लिमिट x टेंड्स टू 0 fx मल्टीप्लाई लिमिट x टेंड्स टू 0 g ऑफ x. ये प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई होती है, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन लिया जहां पर कुछ नया है जो आप लोग यूजुअली मिस्टेक करते हो. सी इफ यू डोंट अप्लाई दिस प्रॉपर्टी एंड राइट द लिमिट डायरेक्टली हियर, तो यहाँ मुझे 0 बाय 0 मिलता है e रेज टू 0 बाय 0. नो नीड टू राइट, ये मेरा रीराइट फंक्शन था इसका, राइट. और इसकी लिमिट थी e. तो जब हम यह लिमिट रखेंगे तो हमें दो काम करना है. पहला, वी विल राइट इट सेपरेटली विद द लिमिट, एंड दूसरा हम इस टर्म को न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे सिंप्लीफाई करके. तो आई एम गोइंग टू राइट इट लिमिट x टेंड्स टू 0. दिस आई कैन राइट अगेन 1 प्लस x रेज टू 1 बाय x, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट लिमिट x टेंड्स टू 0. इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म लिखेंगे. सो व्हाट इट कम्स, एलसीएम लिया तो आई एम गेटिंग हियर x रेज टू 2 1 प्लस x. अब यहां मुझे मिलता है विद द माइनस साइन 1 प्लस x log 1 प्लस x, एंड हियर आई एम गेटिंग, यहाँ एलसीएम लिया तो यू गेट ओनली 1x. सो दिस इज द फंक्शन. अब यही दोनों यहाँ पर, दिस इज द की स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर आप यहाँ इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो आप यहीं पर इस क्वेश्चन में स्टक हो जाएंगे एंड यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट फर्दर. सो कीप इन माइंड, क्या दो काम किए हमने पहले fx और gx को सेपरेटली लिखा है लिमिट लगा के, और दूसरा काम क्या किया है, यहाँ दो टर्म थी, इन दो टर्म को सिंप्लीफाई करके आई एम गोइंग टू राइट न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. क्यों? क्योंकि एल हॉस्पिटल अगर अप्लाई करना है तो इट शुड बी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. नाउ अप्लाई द लिमिट. तो मुझे क्या मिलता है, लिमिट, हाँ, फॉर द फर्स्ट टर्म आई एम गेटिंग e, राइट, एंड फॉर द सेकेंड टर्म व्हेन यू पुट 0 हियर, तो मुझे यहां मिलेगा 0 log 1 0, क्योंकि ये भी 0, x मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0. तो मुझे इस फंक्शन के लिए मिलता है इंडिटरमिनेंट फॉर्म 0 बाय 0. तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू अप्लाई एल हॉस्पिटल फॉर दिस, नॉट फॉर दिस. सो नाउ द फंक्शन बिकम एनी कांस्टेंट, दैट इज e मल्टीप्लाई लिमिट x टेंड्स टू 0, एंड दिस द टर्म which is minus 1 plus x log 1 plus x का डिफरेंशिएशन plus x. I have to take the differentiation of this upon में differentiation of the denominator, that is I'm going to multiply this. So this comes x raised to 2 plus x cube and limit x tends to 0.
आई होप आपको ये 2 स्टेप्स क्लियर हुई है कि यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, हमने ऐसा क्यों किया ये भी समझ में आ रहा होगा। यही इसका की स्टेप है। यहाँ हमने इसको रीराइट करके सेपरेट लिमिट लगाया जिसका वैल्यू मुझे मिला है ई, ओके। और यहाँ पर इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। व्हाई आई एम गोइंग टू राइट दिस वे? Because whenever you get 0 by 0, then only you can apply L'Hospital rule. Here we have 2 terms, right? If I am not going to simplify it, then from second term you get 1 by 0. That is infinite. Infinite plus something is infinite. Get it? जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या करा है, we need to simplify in the form of numerator by denominator. When you put the limit, you get here indeterminate form 0 by 0, and then you apply limit for this. You write it as it is, and for this I'm going to apply L'Hospital rule, that is differentiation with respect to x in numerator with respect to x in denominator. So this e remains as it is, and we will apply L'Hospital rule on this function. So differentiation of numerator divide differentiation of denominator. I write this into the simplest form x raised to 2 plus x raised to 3. अब जब मैं न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो यहाँ फिर से यूवी रूल अप्लाई होगा। गेट इट? तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा? दिस इज ई लिमिट x टेंड्स टू 0, हियर यू गेटिंग माइनस का 1 प्लस एक्स एज इट इज, इसका होगा 1 प्लस एक्स, ओके। देन दिस log 1 प्लस एक्स एज इट इज, एंड इसका डिफरेंशिएशन होगा विथ माइनस साइन, सो आई एम पुटिंग हियर माइनस, 1 का 0, x का 1। ये हुआ हमारा एक टर्म, और इस x का डिफरेंशिएशन होगा 1, राइट। इन डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन से मुझे मिलेगा 2x प्लस 3x रेज़ टू 2। ओके, नाउ अगेन पुट द लिमिट। जब लिमिट पुट करते हैं यहाँ ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर मुझे मिलता है माइनस का 1, यहाँ मिलता है 0 और ये प्लस का 1, सो यू गेट हियर 0 बाय 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी दोनों x की टर्म है 0 का। फिर से समझो, ये कैंसिल होके यहाँ से तुम्हें मिला था -1 इन द न्यूमरेटर, यहाँ पर मिला तुम्हें माइनस का log 1 और ये +1, और डिनोमिनेटर में था 0, ये log 1 होता है 0, -1 + 1 is 0, so you get indeterminate form 0 by 0। ओके, 0 by 0 मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, हम फिर से अप्लाई करेंगे L'Hospital रूल। अब जब तुम फिर से अप्लाई करते हो तो यहाँ ये e remains as it is, this limit x tends to 0। सी यहाँ पर सिंप्लीफाइड होकर -1 मिलता है, -1 का डिफरेंशिएशन 0, इसका होगा विद द माइनस साइन 1 by 1 प्लस एक्स, और x का कितना 1, इस +1 का डिफरेंशिएशन 0। अब डिनोमिनेटर में जब डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिलता है 2 + 6। अगेन यू हैव टू अप्लाई द लिमिट। लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर 1 -1 by 1 x का 0 होता है, तो यहाँ से मुझे मिला माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई ई, एंड फ्रॉम हियर दिस इज 2, तो मुझे ये सिंप्लीफाइड करके इसका लिमिट क्या मिलता है -e/2। दिस इज दी आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व इट। यहाँ मैंने फिर से बताया था कि ये तुम्हारा की स्टेप है इस क्वेश्चन का, जहां पर हमने इस फंक्शन को फिर से रीराइट करके लिखा है और प्रॉपर्टी अप्लाई करी है लिमिट ऑफ 2 फंक्शन कैन रिटर्न एज लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई लिमिट ऑफ सेकेंड फंक्शन। उसी से मुझे इसका लिमिट ई मिलता है, और यहाँ से इसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में लिखकर मुझे लिमिट मिलता है 0 by 0। तो जब मुझे इस फंक्शन के लिए इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है तो दिस कांस्टेंट रिमेन्स एज इट इज थ्रू आउट द इक्वेशन एंड विल सॉल्व ओनली दिस पार्ट। गेट इट? I hope you understand all the questions. I hope you understand this all 5 questions which I have done for you. In my next lecture, I am taking the questions based on 2 indeterminate form which are 0 multiplied by infinity and infinity minus infinity. And then in next lecture series, we'll take the another 3 indeterminate form. If you like my video, then please subscribe my channel. Thank you so much.